صوبائی وزیر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر سے گرین لینڈ اینڈ لیزر وفد کی ملاقات۔ مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف لاہور عظیم چودھری سے۔ جی عظیم چودھری، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ اس ملاقات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ جی ناظرین، صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر سے گرین لینڈ اینڈ لیزر کے وفد کی اس موقع پر ایک ملاقات ہوئی۔ وفد میں رانا فیض رسول، ایڈوکیٹ رانا یاسر اور رانا عاطف شامل تھے۔ ملاقات میں زرعی شعبے کی ترقی پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ زرعی اصلاحات اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب نے کہا کہ حکومت زرعی ترقی کے لیے نجی شعبے کے اشتراک کو فروغ دے رہی ہے۔ گرین لینڈ اینڈ لیزر کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ پنجاب میں زراعت کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ٹیکنالوجی اور مشینری کے زرعی پیداوار میں اضافہ ممکن ہے۔ زرعی ترقی ملکی معیشت کے استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ کسانوں کی سہولت کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ جی چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر بارش کے دوران شہریوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے چنیوٹ ٹریفک پولیس اہلکار بارش کے دوران مسافروں کی مدد میں پیش ڈی ایس پی خرم شہزاد کی زیر نگرانی سب انسپکٹر چودھری اظہر اقبال گجر و دیگر ٹریفک پولیس اہلکاروں نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے عوام کی مدد کی، جس پر عوامی حلقوں نے ٹریفک پولیس کی خدمت کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال بورڈ کے میٹرک امتحانات 2025 میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے اعزاز میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ، کیش پرائز اور میڈلز دیے گئے۔ کمشنر ساہیوال، چیئرپرسن ساہیوال بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل اور ممبر پنجاب اسمبلی ملک قاسم ندیم تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ کمشنر ساہیوال ڈاکٹر آصف طفیل اور ایم پی اے ملک قاسم ندیم کی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات، ان کے اساتذہ اور والدین کو مبارکباد دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر آصف طفیل نے کہا کہ نوجوان طلبہ و طالبات ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، جنہوں نے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے۔ تقریب میں سیکریٹری بورڈ، کنٹرولر امتحانات اور تینوں اضلاع کے چیف ایگزیکٹو افسران سمیت محکمہ تعلیم کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ چنیوٹ سے رانا تجمل وسیم ڈسٹرکٹ رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلع چنیوٹ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے عوامی بہبود کی 153 ترقیاتی اسکیموں پر تعمیراتی کام جاری۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ ریویو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام اے ڈی پی کی جاری اور نئی اسکیمیں، چیف منسٹر ڈسٹرکٹ ایس ڈی جیز دوسرے مرحلہ میں بنیادی مراکز، صحت کی ریمپنگ، سیپ اور شوگر سیس کے منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے جاری منصوبوں کو مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کرنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ شفافیت پر زیرو ٹالرنس ہے۔ متعلقہ محکمے موقع پر موجود رہ کر ترقیاتی عمل کی نگرانی جاری رکھیں۔
चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया में नहाने पर आयद पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर थाना मोहम्मद पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने बुल्ले वाला से दरिया में नहाने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना मोहम्मद वाला में अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाबी सूरत हाल में दरियाओं नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद है। शहरी एहतियात करें, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैलाबी सूरत हाल में लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। चनियोट से राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटरियों, पोशिश वगैरह का मुआयना किया। डीपीओ ने ड्राइवरों से गाड़ियों की तफसील और मरम्मत के बारे में भी दरियाफ्त किया और गाड़ियों की देखभाल और बर वक्त मरम्मत को यकीनी बनाने की हदायत की। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की देखभाल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गाड़ियों की बर वक्त मरम्मत को यकीनी बनाएं ताकि दौरान ड्यूटी किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। साहिवाल से रिपोर्टर एमबी न्यूज मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डीआईजी महबूब रशीद ने सर्विस डिलीवरी के मयार को बेहतर बनाने, अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले और पुलिस कारकर्दगी के जायजा के हवाले से जिला साहिवाल के स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन थाना सिविल लाइन का दौरा किया। उन्होंने थाने का रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरक्स, माल खाना, असला खाना और थाना की इमारत का तफसीली मुआयना किया। दौरान विजिट थाना के ऑनलाइन व मैनुअल रिकॉर्ड की तकमील, फ्रंट डेस्क, हवालात, बैरक्स, माल खाना, कोर्ट, मुकदमात की तफ्तीशी रूम, VSO रूम, सिक्योरिटी इकदामात, मुलाजमीन की रहाइश गाहों का तफसीली मुआयना किया। चीचा वतनी से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर एमबी न्यूज इमरान नदीम शाह। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साफ सुथरा पंजाब को अमली जामा पहनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी मोहतरमा नरजिस खातून जाफरी मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है, जिसके लिए उन्होंने चीफ ऑफिसर बल्दिया परवेज अख्तर गुज्जर और इनकी टीम के हमरा क्रिसेंट गर्ल्स कॉलेज रोड हाउसिंग कॉलोनी का विजिट किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। अलावा घर घर जाकर डोर टू डोर सर्वे किया और साफ सुथराई के हवाले से शिकायत सुनी और इनके अजाले की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा नरजिस खातून जाफरी ने अवामुन नास को भी कूड़ा करकट बाहर फेंकने से मना किया और कहा कि आप लोगों के ताउन से ही ये सब मुमकिन होगा और बल्दिया एहलकारों की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। अवामी व समाजी हलकों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी मोहतरमा नरजिस खातून जाफरी की चीचा वतनी शहर में तैनाती को खुश आइंदा करार दिया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि जब से मोहतरमा नरजिस खातून जाफरी साहिबा चीचा वतनी में तैनात हुई है, शहर भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम देखे जा रहे हैं और बल्दिया का अमला भी अपनी अपनी ड्यूटियां चीफ ऑफिसर बल्दिया परवेज अख्तर की ज़ेरे सरपरस्ती मुकम्मल जिम्मेदारी से सर अंजाम दे रहा है।
खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अहमदपुर शर्किया के नवाही थाना नौशहरा जदीद का रिहायशी मोहम्मद अब्बास ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी जमीन को पानी लगा रहा था, मेरे करीबी रिश्तेदारों ने आकर मुझ पर दावा बोल दिया और लड़ाई शुरू कर दी। मुझ समेत मेरे भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजीद इनका ये भी कहना था कि 6 माह से मेरी फसल जल कर राख हो गई है, मुझे पानी नहीं लगाने दे रहे। इस हवाले से मजीद मुतासरीन की जुबानी सुनिए क्या कहना है इनका। मौलवी साहब क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सजाद। सजाद भाई क्या मामला थे उन्हें? मामला ये थे कि मोटर चली खड़ी है, मोटर तकरीबन कोई कनाल खानती खड़ी है, कनाल इन्हों का आपा थे कोई घरेलू झगड़ा थे ते दूजी गल एन पे आजम भी ते अब्बास भी उन्हें आके मोटर बंद कर दो। असा ने मोटर बंद कर दी थी, अब उन्होंने टुका वाला दी थी। मोटर बंद के बाद उन्हें कोई खाला शाला बन जाए, कोई लड़ाई झगड़ा के बन यहाँ पे इतना टुका वाला है अगू खाला बन सके ने, बाकी लड़ाई छड़ाई थी है कोई? मेरे सामने लड़ाई छड़ाई मेरे इतना कहनी थी, मैं थी मोटर पे हम उतना क्या पता सही होए था अपने घर। हाँ सही, क्या मामला थे आवाज सही? मामला सही अजीज अजीज क्या मामला थे? मामला ये था सही आज 4 महीने थी गया नहीं सिलसिला चलता पे कोई करोड़ पकेगा। अच्छा, उत्था मां में बने जी लड़ाई है कोई, ये बंदा है आजम जड़ा है उन्हें पर ना है शादी की थी। अच्छा, ये आधे भी उत्था उन्होंने मां में बने वो मां में रास्ता नहीं लेंदे, बने जे जड़ा ना खाला नहीं लेंदे। उन्होंने अदालत तक केस चलता पे, खाला उन्होंने पासे है भी काना उन्होंने बने जाने पासे, वो अदालत तक फैसला चलता पे। उन्होंने जिम्मेदार को गए, थाने भी पकड़ी जैन 749 थी है। SHO साहब भी मौके ते गए, उन्हें आके वो शबीर को उनके मामे को भी 4 फुट रास्ता दे तो इधे थाने गाँव ना आज तो बाद नाम है वो 4थे 8वें हर दफा वाहन पे कॉल करते उन्होंने पकड़ने ना खड़ा आई बने जाऊँ आधा शराब पीने ये थी वो थी। अटक से हमारे नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक शहीन इस्लामिक मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एकेडमी के बच्चों ने जेरे सरप्रस्ती इंस्ट्रक्टर खालिद महमूद अवान ब्लैक बेल्ट 5 डॉन अटक शहर में वाक की और मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की ड्रिल के डेमो पेश किए। एकेडमी के बच्चों ने ट्रेनिंग सेंटर MC बॉयज हाई स्कूल से शुरू करके मेन फवारा चौक से होते हुए वापस MC बॉयज हाई स्कूल पर इख्तिताम किया। इस मौका पर खालिद महमूद अवान ने कहा कि मार्शल आर्ट ताइक्वांडो ऐसी गेम है कि इसमें फिटनेस के साथ साथ बहुत सी बुराइयों से भी बचा जा सकता है। कोशिश करें कि अपने बच्चों खुसूसन बच्चियों को इस गेम की तरफ लाएं ताकि सेल्फ डिफेंस सीखें। इस मौका पर बच्चों ने कहा कि सर खालिद हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं और हमें बावजू रखते हैं और मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के साथ साथ नमाज की भी पाबंदी करवाते हैं। स्टूडेंट बच्चियों ने कहा कि सर खालिद ने हमें सेल्फ डिफेंस में महारत की तरबियत दी है और मुश्किल हालात में लड़ने की बेहतरीन तरबियत दे रहे हैं, जिससे हमारा एतमाद बहुत ज्यादा हुआ है। लोगों ने इन बच्चों को देखकर कहा हम भी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करवाएं। आज हमें इन बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगा है। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की अच्छी तरबियत लेकर कल यही बच्चे पूरी दुनिया में मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे इंशाअल्लाह।